So please start your presentation, Mr. Fazil and Mr. Udyan and Akshay. So please begin your presentation. Please introduce yourself, introduce your firm, because not everybody knows you. So please introduce yourself and your firm, and then you can come to the presentation, please. Okay. एक मिनट अक्षय आ जाए जरा सा. जी, sure. So we will close our video so that there is no interruption, and हम लोग क्योंकि वो भी सिग्नल में थोड़ा इशू हो जाता है और So, ma'am, basically, Design Response is our firm's name, as you know, for other people's also. Akshay, I may know something, but a lot of people doesn't know, about your group. So please introduce the firm, right? Okay. So basically, it's an architectural firm which is running in Dehradun from last almost 20 years. And architect Udyan Agarwal ji is the head of this firm from last 20 years. And we have done a number of projects in Dehradun and around Dehradun in the state of Uttarakhand. So in short, I'll give you the overview. Our expertise is in architecture and interiors, building construction, project management, and financial services. So basically, right now we are working together with Mr. Fazil, and Mr. Fazil owns a company with the name of Fair Fincor in the sector of financial services and real estate as well. So he is running this firm from last 20 years approximately in around 10 or 12 cities in northern India. So we are working together right now for several projects. And talking about this architectural practice, so we have completed over 120 plus residential projects, 50 plus commercial projects, 20 plus colleges and schools, which is actually a very important thing because all these schools and colleges are designed as a barrier-free design, and so which is going to be very helpful in this assisted living community project, Arunodaya project. And we have also we are actually very much expert in hotels and resorts, hospitality sector. So Mr. Udyan has completed landscape of Sidkul Haridwar, that was approximately 1800 of acres, and as well as master planning of Sidkul Pantnagar. We have also completed 5 hospitals in and around northern India. So this is basically. Can I ask a question? Yeah. What did the landscaping at Sidkul 1800 acres involve? I am asking because my brother works for BHEL Haridwar. That's the reason why I'm asking. What did it involve? This involves the landscape of industrial area of Haridwar, the Sidkul industrial area, IIEH, Integrated Industrial Area, Haridwar. No, I understand Sidkul. I just wanted to know what did the landscaping involve actually? What did landscaping mean? Site plantation, the pathways, the islands. Okay, understood. All right. Yeah. Thank you. Okay, so basically ये थोड़ा सा overview है on our team and associates. If I talk about this architectural and construction team, we are a team of 9-10 architects in-house working in this office. Mr. Udyan Agarwal and I right now are the director of the firm, and all other peoples are architects. Then we have a team of civil engineers, site engineers, draftsmen. These all are in-house team. Then we have a lot of associates also. Just to give an overview, we have added some of them, our structural consultants, electrical consultants, and plumbing consultants. These people are working for us from last, I think, 10-15 years, and they have done a lot of big projects of more than
1.5 lakh square feet or 2 lakh square feet, like these kind of scale projects they have done with us. And talking about the financial consultants, Mr. Fazil's firm, he is right now the director of the firm with over 50 financial advisors, and they are working in approx 12 cities from last 20 years. So this is a little bit about our team, which is currently working in Dehradun. So I pass it on to Mr. Fazil. Now he will explain on the land. Okay, so basically this was all for our presentation. Now I would like to share the screen with Mr. Fazil. You guys also can on your videos. समझे नहीं क्या? अच्छा, right. Okay. Just slide and ठीक है मैम, जिनको मैं जानता हूँ या मैम, मेरा जो डिस्कशन हुआ था आपसे कि इस प्रोजेक्ट्स को हम 2 पार्ट्स में मैंने सजेस्ट किया था करने के लिए। जैसा कि अभी अक्षय ने बताया, ये एक छोटा सा ओवरव्यू था जो भी टीम है जो काम कर रही है। मिस्टर फाजिल, आपने मुझसे जो बात की थी वो आपको रिपीट करनी पड़ेगी, बिकॉज आपको हाँ, आप थोड़ा आगे आ जाओ, बिकॉज आपका जो प्रपोजल है वो आपको रिपीट करना पड़ेगा, बिकॉज कमिटी बेसिकली उसको मैंने थोड़ा सा बनाया भी है, अक्षय ने डिजाइन कराया जी जी, लैंड का क्या रहेगा, और थोड़ा सा जैसा कि आपसे मेरा बात हुआ था, हमने कंस्ट्रक्शन को भी लेके बनाया है। लैंड का पार्ट बिल्कुल अलग है। एक्चुअली क्या है, प्रोजेक्ट में सबसे मेन पार्ट है लैंड। अगर लैंड होगा फाइनल हमारे पास में, तभी हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और लैंड का वेरिएशन देहरादून में इस लोकेशन में जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग रेट हैं। इकट्ठी लैंड 3 बीघा मिलना ही अपने आप में बड़ा टास्क है। फिर लैंड अगर मिल जाती है, उसका लैंड यूज क्या है, ये बड़ा टास्क है। ये सब चीजों को इकट्ठा करने के बाद में हमारे पास आपके पार्ट से कोई ऐसी श्योरिटी होनी चाहिए कि अगर वो एफर्ट्स और वो सारे कॉम्बिनेशन करने के बाद में हम लैंड आपको देते हैं, तो इस बात की कोई कि वो लैंड आप लेंगे, इन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में आप लैंड लेंगे। कई बार ऐसा होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस कि हम लोग एफर्ट्स करते हैं, टीम एफर्ट्स करती है, लैंड इकट्ठी हो जाती है, उसके बाद में पार्टी कहती है कि मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। तो उस बेस पे इस तरीके के प्रोजेक्ट को करना पॉसिबल नहीं हो पाता था। और क्योंकि इस फील्ड में है तो ये हम अनगिनत बार हमारे साथ ऐसा हो चुका है ट्रस्ट लेवल पे कि हमने एफर्ट्स किया, 2 महीने 4 महीने 6 महीने में लगते हैं लैंड को इकट्ठी करने में। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लैंड की शेप भी हमें देखनी होती है कि आपका जो प्रोजेक्ट है, जो डिमांड है, वो लैंड की शेप इस तरीके 3 बीघा लैंड हो सकता है मिल जाए, लेकिन वो इस शेप में हो कि वो यूज की ना हो आपके। तो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को देखने के साथ में लैंड का ये पार्ट रहेगा। दूसरा जो मेरी सामने पिक्चर आई कि आपको लैंड सोसाइटी के नाम करनी है, वो भी टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल करनी है। फिर एमडीडीए के अंदर लैंड होनी चाहिए, तो लैंड के लिए मुझे शासन से परमिशन लेके देनी होगी सोसाइटी के नाम। अगर म्युनिसिपल लिमिट के अंदर है तो परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन म्युनिसिपल लिमिट के अंदर 3 बीघा लैंड होना ही अपने आप में बड़ा टास्क है। तो कुछ क्वेश्चन है जिनको करने के लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे साथ में जो रिक्वायरमेंट है वो मैं समझ गया हूँ, बजट को भी मैंने समझ लिया है, बट आपको हमारे साथ में एक अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं जो फुलफिल हो सकती हों, उनके साथ में एक एग्रीमेंट करना होगा, जिसमें आप और हमारे बीच में एक टाइम बाउंड होगा कि 90 डेज का टाइम रहेगा हमारी तरफ से कि 90 डेज में हम वो टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करते हुए आपको लैंड देंगे, और उस लैंड का यूज उस तरीके का हम करके देंगे आपको जो वो आपकी सोसाइटी के नाम हो जाए। अगर वो लैंड एमडीडीए में है तो हम आपको वो रास्ता देंगे कि लैंड
सोसाइटी के नाम हो जाए या परमिशन जिस तरीके की रहेगी, और अगर वो म्युनिसिपल लिमिट के अंदर है तो उस बजट का निकाल के देंगे। जो लैंड का ऑन एन एवरेज मैंने सर्वे किया है, थोड़ा सा मुझे जिस चीज की नॉलेज है, तो लगभग 125 लाख पर बीघा के हिसाब से लैंड का एवरेज आता है। इसमें कुछ एरिया में लैंड हमें एक से कम भी पड़ेगी, कुछ एरिया में थोड़ी ज्यादा पड़ेगी। बाकी सारी चीजें हमने बनाई है, एक ओवरव्यू है, थोड़ा सा मैं उस पर एक प्रेजेंटेशन ओपन करता हूँ, आप उसे रीड कर लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। से डील करेंगे कि आप 3 महीने से आपसे कहते हैं कि ठीक है आप 3 महीने तक हमारे को लैंड ढूंढ के दीजिए या जो भी है, तो उसमें आपसे एग्रीमेंट करने के लिए हमारी तरफ से आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी? मुझे रिक्वायरमेंट ये होगी कि आप मेरे साथ में एक, जो भी आपकी टीम है, जितने लोगों की टीम है अपनी, वो टीम में से जिन बंदों को आपकी टीम ऑथराइज करेगी वो एक एग्रीमेंट करेगी, एक मुझे कमिटमेंट फीस पे करेगी। वो जो भी एक्सवाइज अमाउंट डिसाइड करेगी आपकी टीम, उसके लिए कोई फिगर नहीं है, जिससे मेरे और आपके बीच में है कि ये आप इंटरेस्टेड हैं। दोनों पार्टी चाहो तो जो भी आप मुझे पेमेंट देते हैं उस पर साइन करके हम रखेंगे। जो पीरियड होगा उस पीरियड में वो पैसा टच नहीं किया जाएगा, और 90 डेज के अंदर हम आपको लाएंगे, उसी में सारी लैंड हम आपको दिखा देंगे। वो लैंड जो आप फाइनल करेंगे उसका लीगल चेक, लीगल हम ओरिजिन फ्रॉम द लैंड से लेके टिल डेट आपका क्लियरेंस देंगे। ये हमारी होगी, वो लीगल रिजल्ट्स उस लैंड में नहीं होगा, क्रिस्टल क्लियर लैंड मिलेगी आपको। ये सारा ये नॉलेज है उस चीज की, इसलिए उसका कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा उस पर। तो लैंड में ये कंडीशन है, लेकिन लैंड का क्या जो इस एरिया में है, मतलब एरिया जितना भी मैंने देखा है जो आपके, और अगर फाजिल जी नहीं मिली तो जो आप कमिटमेंट फीस मुझे देंगे, देखिए नेगेटिव पार्ट आपको 100% रिफंड हो जाएगी, वो हमारा फॉल्ट है। क्योंकि आपने 90 दिन अगर मुझे दिए हैं तो उस 90 दिन में आपका टाइम लॉस है, मेरा टाइम और एफर्ट्स का लॉस है। मैं ऐसा 0% चांस होंगे कि आपको लैंड हम ना दे पाए, ऑप्शन आपको अनगिनत दूंगा, और मैं 100% मुझे लगता है कि इस बात की गारंटी रहेगी कि उससे वेरिएशन से ज्यादा लैंड आपने ऑलरेडी यहाँ बहुत एक्सरसाइज करी है, बहुत लैंड देखी है। इसमें 2 पार्ट है बेसिकली, लैंड एक तो प्रोजेक्ट के लिए फिजिबल देखना, प्लस आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना। तो आप अगर यहाँ घूमोगे, बहुत सारे एजेंट घूम रहे मार्केट में, दे देंगे आप। मुद्दा ये है कि वो आपके नाम होनी चाहिए, एमडीडीए से नक्शा अप्रूव्ड होना चाहिए आपके प्रोजेक्ट को करने के लिए। वो सारा कंसल्टेंसी का काम मेरे इस प्रोजेक्ट में आपके साथ में रहेगा। आपकी क्या इनिशियल टोकन फीस कितनी होगी और क्या हम एक्सपेक्ट करें? क्या वो आप ये समझते हैं कि हम मिनिमम पैसा रिस्क करना चाहेंगे बिकॉज इट इज मनी ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी? जैसा नहीं है मैडम, क्योंकि जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक 50,000 का हमारे साथ में एग्रीमेंट रहेगा, हम 50,000 को लेके एक बॉन्ड बनाएंगे कि ये 50,000 फीस है हमारी पार्ट से, एक सगन के तौर पे कि हम स्टार्ट कर रहे हैं कोई अच्छा काम, तो ये अमाउंट है जो हम बाद में जब फाइनल करेंगे इसको एडजस्ट करेंगे। तो वो एक अमाउंट रहता है जो एग्रीमेंट में होगा, एग्रीमेंट प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होगा हमारे बीच में, जो 3 महीने के लिए वैलिड होगा। इन केस कोई भी कमिटमेंट फेलियर होता है तो वो 100% रिफंडेबल होगा। ओके, प्लीज। जो बाइफर्केशन, अब बात आती है कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने बोला था आपको कि हम लैंड के फाइनल होने के बाद कंस्ट्रक्शन पे जाएंगे, बट फिर भी एक थोड़ा सा हमने बाइफर्केट करके बनाया है कि लैंड और कंस्ट्रक्शन में एक्चुअल में जो मतलब एक कैलकुलेशन आई है वो क्या है, वो मैं एक बार प्रेजेंटेशन, जो कॉस्टिंग आ रही है हमारे पास। इसमें एक चीज मेरे को डाउट था, एक्सक्यूज मी, आप कह रहे हैं कि 50,000 का एक टोकन मनी होगा जिसमें आप लैंड आइडेंटिफाई कर लेंगे। हाँ। उसके बाद वी गो इन फॉर अ परचेज ऑफ लैंड, और उसके बाद आप परमिशन अप्लाई करेंगे। जब मैं समझा नहीं, दोबारा से रिपीट कीजिए।
टोकन मनी के बाद आप लैंड आइडेंटिफाई करेंगे। जी लैंड आइडेंटिफाई होने के बाद जो भी उसका रेट फाइनल होता है, सो वी गो इन फॉर अ परचेज ऑफ दैट लैंड। उसके बाद आप उसकी परमिशंस जो रिक्वायर्ड होंगी वो अप्लाई करेंगे। परमिशन तो डेफिनेटली बाद में ही अप्लाई होगी, लेकिन परमिशन किस पैटर्न पे होंगी, जो लैंड होगा उस लैंड के हिसाब से पहले से हमें पता होती है कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या वो लैंड फुलफिल कर रही है। अगर मैं एमडीडीए में किसी नक्शा अप्रूव कराने जाता हूँ तो मुझे लैंड बाइंग करने के लिए पता होता है कि इसका नक्शा अप्रूव होगा या नहीं होगा। जब मैं बाइंग कर रहा हूँ पता होगा नहीं, कि वो मैं आपका पॉइंट समझ गया। जैसे आपको गारंटी चाहिए, क्या आप कोई काउंटर गारंटी देंगे कि सपोज वी गो इन फॉर अ लैंड, अगर हमने परचेज कर ली, लैंड की कॉस्ट 3 CR है, हाँ उसके बाद परमिशंस होंगी, तो कोई हाँ काउंटर गारंटी आपके एंड पे होगी कि उसकी परमिशंस थ्रू हो जाएंगी उस फॉर दैट पर्टिकुलर लैंड? मैं मेरी काउंटर गारंटी तो लैंड परचेज करने से पहले होगी। आपको जो मैं पॉइंट्स दूंगा वो पॉइंट्स आप वेरीफाई कर लेना पर्टिकुलर अथॉरिटी से टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या नक्शा अप्रूव्ड हो सकता है। अगर आपको ओके अथॉरिटी से मिलेगा तो मेरे साथ आगे आप, अदरवाइज फिर उस डील को वहीं ब्रेक कर देना। मैं आपको ऐसा ऑप्शन ही नहीं दूंगा कि मेरा जो कमिटमेंट है वो फेल हो। मैं एडवांस में डॉक्यूमेंटेड आपको दूंगा कि ये लैंड है, इसका लैंड यूज ये है, जिसको 100% जो एमडीडीए का बायलॉज है उसमें हो सकता है। आपकी तरफ से कुछ एको हो रहा है, शायद कोई दो डिवाइसेस हैं, आपकी तरफ से कुछ एको हो रहा है अक्षय। फोन वगैरह हाँ, कोई आप फोन में अगर कनेक्टेड है, दो चीजों में कनेक्टेड है तो इको होगा। हाँ प्लीज। हाँ, मेरा एक्चुअली जो सवाल आपने किया है कि काउंटर गारंटी तब होती अगर कहीं आपको सस्पेंस होगा कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। जो बायलॉज है एमडीडीए के नक्शा पास होने के, अगर वो बायलॉज क्लियर है, लैंड उसके अकॉर्डिंग है, तो फिर मेरी काउंटर गारंटी की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। मेरी काउंटर गारंटी की रिक्वायरमेंट तब है आपको अगर मैं आपको एग्रीकल्चर लैंड खरीदवाता हूँ और फिर मैं कहता हूँ कि मैं शासन से परमिशन लेके आऊंगा, तो मैं काउंटर गारंटी दूंगा आपको। बट यहाँ काउंटर गारंटी की रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं है कि जो मैं आपको दे रहा हूँ वो क्रिस्टल क्लियर है कि ये नॉर्म्स एमडीडीए के, उस नॉर्म्स के हिसाब से लैंड है। ये देखिए आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये मैं समझाऊं कि पहला आपको एमडीडीए से नक्शा अप्रूव चाहिए उसे बनाने के लिए। दूसरा सबसे बड़ा कि वो लैंड आपको पर्टिकुलर सोसाइटी के नाम से चाहिए, और इतनी बड़ी लैंड को लेने के लिए परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है अगर म्युनिसिपल लिमिट से बाहर लैंड है। म्युनिसिपल लिमिट के अंदर है तो परमिशन नहीं है, और म्युनिसिपल लिमिट के अंदर उतनी सस्ती लैंड अवेलेबल नहीं है। अगर वो कॉस्टिंग मैच भी होती है तो उतनी बड़ी लैंड अवेलेबल नहीं। तो ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करना एज पर नॉर्म्स, ये मेरी एडवांस में उस एग्रीमेंट में जब हम प्राइमरी एग्रीमेंट करेंगे उसमें सारे क्लोज हम मेंशन करेंगे, और आपको आप और हम दोनों म्यूचुअल करेंगे उसको। जो एमओयू होगा उसमें दोनों के पॉइंट्स आएंगे, आपके और मेरे दोनों आएंगे। सो मतलब हम एक एग्रीमेंट करेंगे लैंड का, और एक एग्रीमेंट जब लैंड हो जाएगी तो दूसरा एग्रीमेंट करेंगे कंस्ट्रक्शन का, ऐसा है? डेफिनेटली आप चाहो तो कंस्ट्रक्शन का एग्रीमेंट हम एडवांस में भी कर सकते हैं, बट एडवांस में करने के लिए हम उसमें कंडीशन ये डालेंगे कि पहले लैंड होगी फिर उसके बाद ये इम्प्लीमेंटेशन होगा। हम एडवांस में कर सकते हैं बट दोनों बाय एग्रीमेंट होंगे अलग अलग। अच्छा, तो जब जैसे मोहित जी पूछ रहे हैं कि अगर हमारा आप क्या काउंटर गारंटी लेते हैं, तो जैसे मिस्टर उदयन से मेरी बात हुई थी, आरटीआई वगैरह इवन दैट कैन बी डन फॉर अ लैंड, कि अगर कोई लैंड है तो हम आरटीआई से करवा के एमडीडीए से पता कर सकते हैं कि क्या इसमें हमारा वो हो सकता है या नहीं। एमडीडीए से पता कर सकते हैं, वो तो मैंने 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे हम लोगों को पता चल जाएगा। आरटीआई आप आरटीआई में पता कर सकते हैं, और आरटीआई में ना भी जाना हो तो एमडीडीए के जो बायलॉज नहीं, हम नहीं पता करेंगे, आपकी टीम ही पता करेगी वो कि ये है या नहीं, आप हमें वो डॉक्यूमेंट देंगे, है ना? मतलब हमारे लिए टर्न की का ये पर्पस है कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इट इज ओनली दैट कि हम आपके ऊपर ही रिलाई करेंगे फॉर एवरीथिंग। देखिए ये रिलाई का ही प्रोजेक्ट है, लेकिन रिलाई के साथ में हम कोई भी चीज आपको वर्बली रिलाई करने के लिए नहीं बोलेंगे। जो भी आप रिलाई करें वो डॉक्यूमेंटेड करें। जो भी आपका काम होगा पहले एडवांस में जो नॉर्म्स हैं, जो बायलॉज हैं, उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम।
लीगल का जो भी पेंच होगा, देखिए लीगल कई बार क्या होता है कि मैं इस इंडस्ट्री में लगभग 20 साल से हूँ मॉर्गेज। मुझे पता है कि जो भी लैंड है देहरादून में बहुत सारी लैंड डिस्प्यूटेड है। तो मैं एक बात की तो आपको गारंटी दे सकता हूँ, ये प्रोजेक्ट आप अगर मेरे साथ में करेंगे तो 100% गारंटी कि लैंड में 1% भी कोई पेंच नहीं होगा डिस्प्यूट वाला। आधे से ज्यादा देहरादून की लैंड तो मेरे टिप्स पे है, तो यहाँ जितना भी है। और रही बात, जैसे मैंने सर ने बोला काउंटर गारंटी की, डेफिनेटली काउंटर गारंटी की रिक्वायरमेंट आपको होनी चाहिए। अगर मैं आपके प्रोजेक्ट में कोई अप्रूवल लेता हूँ, कोई शासन से अप्रूवल लेता हूँ या वहां से परमिशन की बात करता हूँ, तो आप उसके लिए फिर मैं और आप एक दूसरे को बाउंड करेंगे उसमें। बट यहाँ ऐसा कुछ रहेगा नहीं, हम शासन से अप्रूवल के लिए नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि टाइम लगता है, बहुत लंबा टाइम लगता है। अप्रूवल में हो सकता है 1 साल लगे, 1.5 साल लगे। जी बाइफर्केशन जो हमारा आया है, लैंड प्लस लीगल जो उसके एक्सपेंसेस हैं, रजिस्ट्री एंड रिसिप्ट और बाकी चीजें मिला के, वो लगभग 4 CR का है। और जो कंस्ट्रक्शन का है वो 5.2 के आसपास का है, जिसमें जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है वो सारी हमने कोशिश करी है एक रफली उसमें करने की। इसमें अप्रूवल से लेके लैंडस्केपिंग से लेके जितना आपके वार्डरोब और ये सब उसमें डाला है आपने, जो आपकी रिक्वायरमेंट आई थी, AC का, लिफ्ट का और ड्रिंकिंग वाटर का, ड्रेनेज का या रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, जितना भी आपने डाला है वो सब इसमें इंक्लूड किया। इवन यहाँ तक कि जो अथॉरिटी का एक्सपेंसेस है वो भी इसमें डाला हुआ है, आर्किटेक्ट की फीस है वो भी इसमें डाली हुई है। सो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कितनी आ रही है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आज की डेट में अगर हम जाते हैं तो 9.2 के आसपास आ रही है। इसके लैंड कॉस्ट और वो मिला के, लैंड कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन मिला के। मैम इसमें अगर हम लोग, एक मेरा पॉइंट था सिर्फ कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसमें हम लोग स्पेसिफिकेशंस डिसाइड करके उसमें, मतलब जिस वक्त हम लोग फाइनली उसमें आएंगे, एग्रीमेंट में आएंगे, तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो हमारे स्पेसिफिकेशन पे बहुत सारी चीज डिपेंड करती है। तो वो स्पेसिफिकेशंस हम लोग अगर एक बार डिसाइड कर लेंगे तो फिर जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो वेरी करेगी। वो मतलब मे बी पर जब हमारे पास रुपए ही 8 करोड़ होंगे तो हम 9 में कैसे बनाएंगे, ये बताएं। जो प्रपोजल आपका है, मैं आपकी बात मानता हूँ कि 8 करोड़ ही आपके पास है, बट जो डिमांड आपकी है और जो एक प्रेजेंटेशन आपने बनवानी थी जिसके हिसाब से जो डिमांड आपने करी है, वो डिमांड में लोअर साइड में तो नहीं जा सकता। लेकिन तो जो डिमांड आपने करी है वो डिमांड उसी के अकॉर्डिंग इतने अमाउंट में पूरी होती है। अब लैंड का भी वेरिएशन आएगा, ऐसा नहीं है कि लैंड 4 की हो सकता है। लैंड में मैंने आपको बोला था कि लैंड में हमें आपको तो मार्जिन नहीं चाहिए। लैंड में हमें अगर मार्जिन की रिक्वायरमेंट जो रहती है, जो एफर्ट्स है हमारे, हमें उतना मार्जिन लैंड में चाहिएगा जो कि ओपन होगा। लैंड में मार्जिन मान लीजिए लैंड ही आपकी जो हमने 1.125 लाख का लिया है, हो सकता है लैंड हमें 110 में मिल जाए, तो आपका यही 50 लाख का मार्जिन आता है। ये तो एक्चुअल कॉस्ट पे डिपेंड करेगा ना। फिर हम जब आपसे हमारी लैंड की स्पेसिफिकेशन की सारी बात होगी, लैंड किस एरिया में कितनी है, अब लैंड की कॉस्ट अगर वेरी करेगी तो ये डेफिनेटली ये वेरी करेगा। अभी तो हम वर्चुअल फॉर्म में बात कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसे अप्रूवल होने चाहिए, ऐसा बना हुआ होना चाहिए। जब ग्राउंड लेवल पे बैठ के बात करेंगे, हमारे और आपके बीच में एक MOU साइन होगा तो उसमें क्रिस्टल क्लियर पिक्चर होगी कि कंस्ट्रक्शन इस लेवल का रिक्वायरमेंट है। मुझे बाकी चीजें जो इसमें फिटिंग्स होनी है वो इस लेवल पे रिक्वायरमेंट है। जो एड ऑन वर्क है, हो सकता है कुछ चीज आप अभी ना करके बाद में करें। अब लैंड तो एक ही बार ली जाएगी मैम, उसको तो आप बार-बार चेंज नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्शन में अगर हमारा बजट एक फिक्स है तो कंस्ट्रक्शन में हम थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर सकते हैं। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बीच में रोक सकते हैं उसमें। मतलब जिस लेवल पे सोच के मैंने बनाया कि लैंड नहीं ठीक है। आप ये बताओ कि 2 बातें,
जी जो आज हमने यहाँ पर बनाया हुआ है एस्टिमेट, प्रिलिमिनरी कॉस्ट एस्टिमेट, हाँ ये आप खुद ही कह रहे हो समय के साथ पूरा बढ़ता रहेगा घटता रहेगा, राइट? नहीं नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ बढ़ता रहेगा घटता रहेगा। मैं ये प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट ली है वो अच्छे प्रोजेक्ट की कॉस्ट ली है, जो लोकेशन में होगी, और ये इसमें लेसर साइड में हम जाएंगे आप लेके इसे बजट में आएगी, जिसमें कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी हमने A क्लास ली है और प्रॉपर्टी की कॉस्ट भी रिफाइंड प्रॉपर्टी की कॉस्ट ली। ऐसा नहीं कि कहीं भी ले जाके हम आपको बैठा देंगे कि देखिए ये ऊपर नीचे ऊपर टावर्ड लैंड है, इसमें इतना खर्च डेवलपमेंट में होगा। मतलब तरीके से अच्छी लोकेशन पे अच्छी लैंड को लेके अच्छे कंस्ट्रक्शन को लेके ये कॉस्ट आती है। चलिए ठीक है। नाउ कैन वी गो टू सी द साइट, कौन सी आप प्रपोज कर रहे हो? देखिए साइट के लिए अभी 2 लोकेशन हमने दी हैं जो हमारे माइंड में है। एक लोकेशन है अपनी ये। अच्छा एक सेकंड एक बात पूछनी है मुझे, पीछे वाले स्लाइड में ही 1 मिनट पीछे चलिए। हाँ, ये एयर कंडीशनिंग में क्या है इसमें? मैम एयर कंडीशनिंग होगी और आपके वुड वर्क है, जो जैसे वार्डरोब्स हैं या फिर कहीं हम लोग को और कोई वुड वर्क करना पड़ता है, वो भी मैम बहुत क्लियर था हमारे को कि आपके स्पेसिफिकेशंस के साथ में। हाँ तो बट एयर कंडीशनिंग में ये हमारी सर्विसेज है या मतलब व्हाट डज इट रियली मीन? इंस्टॉल्ड मतलब एसी इंस्टॉल्ड है आपके लिए। इंस्टॉल एसी इंस्टॉल्ड है? हाँ जी। अच्छा, और इस केस में मिसलेनियस सर्विसेज ये हाँ लिफ्ट का कहाँ है? मिसलेनियस में आ जाता है ना? और ये टैक्सेस इसमें इंक्लूडेड है? टैक्सेस इंक्लूडेड है? GST आपका इंक्लूडेड है इसमें? अभी उस पार्ट पे हमने वर्किंग नहीं की है। अगर आप लोग मतलब जीएसटी को हम एडजस्ट कर लें, अगर जीएसटी इसी में इंक्लूडिंग करना है तो बिलिंग हमें थोड़े कम अमाउंट की करनी होगी, एडजस्टमेंट 100% माल आने के लिए। ये आप लोगों के साथ ये म्यूचुअल डिस्कशन है मैम। मतलब जीएसटी का पार्ट जो है वो, क्योंकि हमें अगर जीएसटी को एडजस्ट करना है और इसी में रखना है तो बिलिंग को थोड़ा एडजस्ट करना होगा, और अगर आपको इसी पे रखना है तो हम उसके हिसाब से थोड़ा कैलकुलेशन ग्राउंड लेवल पे जब करेंगे तो वो डिस्कशन का पार्ट। ओके हाँ चलिए साइट पे चलते हैं प्लीज। ये 2 लोकेशन है, इसमें आपको दिखाया जाएगा बुलबुल एंड सराउंडिंग एरियाज और खलंगा एरिया। कुरुकुल, ये पहले वाला दिखाइए। ये म्यूनिसिपल में आता है ये सारा पार्ट? नहीं, म्यूनिसिपल में नहीं आता है, एमडीडी में आता है। लेकिन जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो हम आपको फुलफिल करके देंगे। इसमें एडवांस में ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी जो लैंड आपको दी जाएगी उस पर नक्शा अप्रूव होगा एज पर एमडीडी बायलॉज, और सोसाइटी के नाम से ही नक्शा पास होगा, सोसाइटी के नाम ही लैंड होगी। जी जी जी। देखिए मैम, इसमें ना जो चीज मैं अभी आपके सामने ओपन नहीं कर सकता, लीगल पार्ट जो मैंने आपसे जैसे बताया है, और मॉर्गेज इंडस्ट्री में मैंने आपका अपना एक्सपीरियंस आपको बताया है जी। ये बेनिफिट मुझे मिलेगा कि मैं इसको आपके प्रोजेक्ट को उस पर लेके जाऊं, क्योंकि म्युनिसिपल लिमिट के अंदर मैंने लैंड को जो रिव्यू किया है वो ना के बराबर पॉसिबल है कि मिल जाए। बट एमडीडीए में हमारे पास ऑप्शन है, और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारी कैलकुलेशन कर चुका हूँ। वो 100% आपको 100% कमिटमेंट के साथ पूरा करके दे, जो दोनों रिक्वायरमेंट है कोई चैलेंज नहीं कर सकता उसको। ठीक, प्लीज गो अहेड। आप अपने जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। उसके लिए हमारे पार्ट से जो बताना था आपको, वो सारी चीजें जो रिक्वायरमेंट थी वो मैंने ओवरव्यू दिया है। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो पुट अप कर सकते हैं, और अगर हम आगे बढ़ेंगे फिर डॉक्यूमेंटेड हो ही जाएगी चीजें। हाँ, ये वाला एक साइट हुआ, और फर्दर
दूसरा साइट एक ये रायपुर, ये खलंगा वार मेमोरियल एरिया पड़ता है, जो डिस्टेंस मसूरी डाइवर्जन से आपने दिया है। एक्चुअली मैं दो चीजें देखी है, रीच भी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए जहाँ पे, और आने वाला टाइम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑल एंड सराउंडिंग का एरिया, इसमें मैक्सिमम एरिया म्युनिसिपल लिमिट के अंदर आ गया। तो वो एरिया में भी अगर हम लैंड को लेके जाते हैं तो वहां भी हमें कुछ लैंड ऐसी मिल जाएगी जिसमें हमें परमिशन की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, या हम उसका तरीका निकाल लेंगे कि परमिशन को कैसे करना है। बट शासन से परमिशन पे, क्योंकि कुछ एक लैंड ऐसी है जिसमें शासन से परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट होगी, उसको टच नहीं, 2 लोकेशन में आपकी लैंड मिल जाएगी। इस चीज का फायदा ये होगा कि ये एयरपोर्ट से बहुत नजदीक है एंड डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब विदाउट एंटरिंग इनटू द देहरादून सिटी। ये मैम उस पे है, रिंग रोड पे है, लोकेशन बहुत प्यारी है ये, ऑफ रिंग रोड है ये, वो आता और डेवलपमेंट आने वाले कुछ एक सालों में बहुत अच्छा होना है उधर। मतलब जो लैंड आज हम लेंगे, अगर हम 2 साल बाद उस लैंड को लेने इस एरिया में जाएंगे तो 3 गुना रेट होगा। मतलब इस एरिया में नियर बाय एंड सब कुछ आसपास में है। अगर आप देहरादून आते हैं तो देहरादून क्लॉक टावर आई थॉट कि 9 किलोमीटर होगा वहां से, 9 या 10 किलोमीटर, और एयरपोर्ट 15 किलोमीटर के आसपास, 15-20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के आसपास। एयरपोर्ट की तरफ से जब आप देहरादून आते हैं तो दिस विल बी द फर्स्ट प्लेस बिफोर एंटरिंग इनटू द सिटी। ओके, एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन प्लीज? आप लोग और कोई साइट? मोहित एंड नम्रता। I'll just ask, ये जो आप परमिशंस की बात कर रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि जो भी लैंड है ये म्युनिसिपल लिमिट्स के बाहर ही वाली लैंड है, तो जो भी परमिशंस आपको लेने लगी तो टाइम फ्रेम क्या रहेगा इन परमिशंस को लेने का? परमिशंस बेसिकली अगर मैं परमिशन लूंगा, जैसे सर ने मेरे से पूछा था कि काउंटर पार्ट क्या है, मतलब हम तो आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, अगर आप ये करते हैं तो फिर क्या रहेगा, मैप अप्रूव होगा नहीं होगा। तो ये वाला पार्ट बेसिकली मैं शासन में लैंड जो आपको दूंगा, वो कोई भी लैंड ऐसी नहीं होगी जहाँ पे शासन से परमिशन लेने जाना पड़ेगा मुझे। वो ऑलरेडी कन्वर्टेड लैंड होगी उस फॉर्मेट में जिससे कि हम आपकी सोसाइटी के नाम न कर दें, और साथ में आपका एमडीडीए से मैप अप्रूव हो जाए। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि ये म्युनिसिपल लिमिट्स के बाहर है, तो इसमें आपको परमिशन लेनी ही पड़ेगी। वो लीगल का पार्ट है, मैं वो आपको जब हमारा वर्किंग शुरू हो जाएगा तो मैं उस पे आपको पूरा क्लियरिटी दूंगा, डॉक्यूमेंटेड वे। ओके, मतलब लीगल का इसमें टेक्निकल कोई पार्ट नहीं है। टेक्निकल तो मैं लीगल अगर डॉक्यूमेंटेड होके करके दूंगा आपको, तो एमडीडीए पूछ रहे हैं कि इसका टाइम आप क्या एंटिसिपेट करते हो, कितने समय में होने की उम्मीद है? किस चीज का सर? आज हम लोग बात कर रहे हैं, मान लीजिए 10 दिन बाद एग्रीमेंट या कुछ करते हैं, तो जो लैंड का जो प्रोसेस है वो कितने दिन में पूरा हो सकता है? सर मैं 90 डेज का टाइम ले रहा हूँ, और आई एम श्योर कि हम 90 डेज से पहले आपको लैंड दिखा के फाइनल करा के आपकी रजिस्ट्री करा देंगे। मतलब परमिशन वगैरह का सारा प्रोसेस आप कह रहे हैं विद इन 90 डेज हो जाएगा? हाँ, लैंड आप रजिस्ट्री की बात कर रहे हैं? ये जितने भी मैप अपलोड होने हैं, जो भी कुछ होना है, वो तो लैंड की रजिस्ट्री होने के बाद ही होना है। ओके, वही पूछ रहे हैं ना कि रजिस्ट्री होने के कितने टाइम लगेगा उस आपको अप्रूवल्स के लिए? मैम उसमें तो ये है कि 60 डेज के बाद तो हमारे को उसका म्यूटेशन होगा, उसके बाद ही हम मैप अप्रूवल के लिए जा सकते हैं। टाइम है, लीगल टाइम है, लीगल टाइम 60 डेज का है, लेकिन कई बार थोड़ा बहुत ज्यादा भी लग जाता है, और कई बार हमारे जो रिलेशन उसमें थोड़ा कम भी लगता है। तो दैट मींस कि 3 महीने में लैंड फाइनल होनी है, इंक्लूडिंग जो भी आप बात कर रहे हैं, आई मीन द परचेज ऑफ लैंड। उसके बाद इट विल टेक अनदर 3 मंथ्स अप्रूवल्स के लिए। रफली यस, हाँ रफली वो एक प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीजर है, उसमें शॉर्ट थोड़ा बहुत प्लस माइनस किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। इसका मतलब ये है कि आपको 2 तरह की इस प्रोजेक्ट में आप पहले 2 तरह की परमिशन से वर्क करेंगे। मतलब पहले आप लैंड की परमिशंस के लिए वर्क करेंगे, उसके बाद में फिर आप एमडीडीए की परमिशंस के लिए वर्क करेंगे। डेफिनेटली। ओके, लैंड की परमिशन खरीदने के लिए हमें नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी,
लैंड का जब खरीद लेंगे तो उसका म्यूटेशन होता है, आपके नाम वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ेगी, उसका 60 डेज का टाइम है। नहीं, लेकिन जहाँ तक हमने पता किया है तो जो म्युनिसिपल लिमिट्स के बाहर वाली लैंड होगी उसके लिए तो शायद परमिशन लेनी पड़ेगी ना। परमिशन 100% लेनी पड़ती है, यही मेन पॉइंट है इसमें। अगर मैं परमिशन लेने जाऊंगा तो मैं आपसे कम से कम 1.5 साल से 2 साल का टाइम मांगूंगा कि मैं लैंड दूंगा आपको, ये लैंड है, इसमें शासन से परमिशन लेके आऊंगा और इसमें 1.5 से 2 साल का टाइम लगेगा। और उसमें भी अगर कोई सचिव, रेवेन्यू सचिव चेंज हो गया तो वो फिर दूसरे वाला आएगा, वो अलग तरीके से लेके चलेगा। तो इसका आपका कहने का मतलब है कि अगर ये जो लैंड है अगर म्युनिसिपल लिमिट्स के बाहर भी है तो भी आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। ओके। हम उसमें टेक्निकली बेसिकली लीगल पार्ट क्या रहता है कि हमें थोड़ा सा उस पार्ट को जैसे हम देसी लैंग्वेज में कहते हैं ना कि कान घुमा के पकड़ना पड़ेगा, तो हमें लीगल जो पार्ट है हमारा उसको लीगल पार्ट को टेक्निकली साउंड होके करना पड़ेगा। नहीं तो वही तो हम क्लैरिटी चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे को समझ नहीं आ रहा है आज कैन सोसाइटी बाय दिस लैंड, चाहे वो एमडीडीए के अंदर है। मैं सारी क्लैरिटी आपको आज ही दे दूंगा, तो आप मतलब आपने तो सारी लैंड देखी हुई है, फिर मेरा क्या यूज है? फिर तो आप देखो ऐसा है दो इश्यूज है, या तो आप क्लैरिटी देंगे या आप काउंटर गारंटी देंगे। अब मतलब वर्बल गारंटी इज नॉट अ गारंटी, जैसे आप चाह रहे हो कि हम कुछ आपको टोकन गारंटी देंगे या फिर कुछ हमारे साथ कोई है। मैंने पहला ही सवाल आपको ये किया है कि मेरी वर्बल गारंटी को आप माने ही ना। जिस दिन मेरा लैंड का एग्रीमेंट आपके साथ में होगा देखने का, उस दिन मैं जो आपको दूंगा वो 100% आपको एक्सेप्टेबल होगी, और वो नॉर्म्स जो मैं बताऊंगा वो नॉर्म्स आप खुद चेक कर लेना, मेरे करने पर मत जाना। हेलो, यस मुझे लगा शायद ब्रेक हो गया कुछ। नहीं, हम लोग सोच रहे हैं, सब लोग सोच रहे हैं। देखिए और सवाल किसी के पास और बोला था, मुझे सिर्फ इतनी एश्योरेंस चाहिए कि जो लैंड आप खरीद रहे हैं, जैसा देखिए मैं शायद ये सवाल नहीं कर रहा होता अगर मैं इस फील्ड में नहीं होता। मैं जब से ये सिरकुल और उत्तराखंड का उद्धार होना शुरू हुआ है तब से अनेक लोग मुझे टच किए हैं फैक्ट्री के लिए लैंड खरीदने के लिए, फार्म हाउस के लिए लैंड खरीदने के लिए, इसके लिए उसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए, और उनमें से बहुत सारे लोग आते हैं जो सारी 100% इवन यहाँ तक कि कुछ लोग तो अमाउंट भी दे के चले जाते हैं कि मेरी तरफ से 50,000 रुपए रखे भाई मेरे लिए लैंड दे दो, उसके बाद वो नहीं अवेलेबल होते हैं। लेकिन मेरी वर्किंग उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है। अब मैं ये वेट नहीं करूंगा कि 4 बार आपका फोन आए तो मैं लैंड देखने जाऊं। मेरा आपसे कुछ एक रिटन एग्रीमेंट और एक कमिटमेंट फीस का मतलब ये होता है कि आप इंटरेस्टेड हैं, दैट्स इट। आपका इंटरेस्ट शो होता है उससे लैंड देखने के लिए। हमारा इंटरेस्ट तो मैं आपकी पॉइंट समझ रहा हूँ, हम वो जो आप बोल रहे हो वो कर भी लेंगे, वो तो हमारा पार्ट पे इंटरेस्ट हो गया ना। अब हमारे को एक्चुअली बाकी सबका इंटरेस्ट भी सेफगार्ड करना है। आई मीन द एंटायर सोसाइटी जो भी उस पे है, बाय चांस लैंड ले रहे हैं, कल को कोई बाय लॉज चेंज होते हैं, कुछ भी होते हैं, एंड वी डोंट गेट अ परमिशन। सर देखिए लैंड खरीदने से पहले, क्योंकि खरीदने के टाइम तक हमारी 3-3.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो चुकी होगी टिल द टाइम ऑफ रजिस्टर। इन्वेस्टमेंट तो आपकी तब होगी ना जब आप डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे लैंड। जब आप डॉक्यूमेंट चेक करना डज नॉट ऑथराइज अस के भी हम लैंड खरीद सकते हैं। पता है मुझे जो उत्तराखंड गवर्नमेंट के बायलॉज हैं जिस अकॉर्डिंग आप लैंड खरीद सकते हैं, अगर वो बायलॉज आपके पास होंगे, आप उनमें राइट है कि लैंड खरीदने तभी तो आप खरीदेंगे, अदरवाइज आप कैसे खरीदेंगे? और ये तो आप पैसा पार्टी को जो भी लैंड होगी, जो भी लैंड ओनर होगा, जब आप वो डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे, उसका लीगल पार्ट चेक कर लेंगे। आपने तो खुद अभी मुझे बोला इस डिस्कशन में कि आप चेक कर देंगे या हम चेक करके देंगे आपको। तो जो लीगल पार्ट है वो तो
होगा तभी आपका इन्वेस्टमेंट होगा। जो मेरे पास आपका कमिटमेंट फीस है वो भी एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट है। जिस दिन कोई भी इफ एंड बट होती है 90 डेज के 91 डेज भी हो जाता है तो आप मुझे बोलोगे मैं 1 मिनट में जिस फॉर्मेट में बोलोगे उस फॉर्मेट में आपको पेमेंट, और मुझे भी नहीं पेमेंट चाहिए। मेरा पेमेंट ये मैम आप लोगों में से उद्दीन भाई को बहुत सारे लोग जानते हैं, वो पेमेंट आप मेरे पार्ट से और अपने पार्ट से उद्दीन भाई के पास रख दीजिए कि आप एक्चुअली ना जी एक आप ना कुछ पॉइंट समझ नहीं रहे हो। हमारे को वो 50,000 मैटर नहीं कर रहे हैं। हमारे को वो 3.5 करोड़ लगाना स्टेक पे मैटर कर रहा है, वो ही क्वेरी है। संदीप जी प्लीज कुछ क्वेरी या कुछ है तो प्लीज आप इसमें इंटरवीन करें, जरा बताएं। उसमें एक्चुअल में है क्या, अगर लैंड यूज हमारा एज पर बायलॉज उसमें हमारा नक्शा पास हो सकता है तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों का एमडीडीए से मैप अप्रूवल में कोई प्रॉब्लम आएगी। मतलब अगर हम एमडीडीए की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं तो मैप अप्रूवल में कोई इशू नहीं आएगा, और मैप अप्रूवल अगर हो जाता है तो फिर हमारे को कंस्ट्रक्शन करने में कोई इशू है ही नहीं। अच्छा, हमने मान लीजिए हमने शुरू किया काम, आपने एक लैंड देखी, लैंड देख के आपने कहा कि 3-4 लैंड्स देखी, आपने कहा कि आप इसमें से देखिए आपको कुछ समझ में आती है या नहीं। हमने इन सब के हमारी तरफ से ये हमने अपने डॉक्यूमेंट चेक किए हुए हैं, ये हमारी तरफ से क्लियर है। हम उसको देखते हैं, समझते हैं, सारी अपनी पसंद करते हैं। उस केस में हमें जो है हम कहते हैं कि पहले हम अपना काउंटर चेक कराना चाहेंगे तो कराएंगे, नहीं तो आपके चेकिंग पे ही भरोसा करके चल रहे हैं मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि ठीक है हमें ये पसंद आई, तो आप क्या कहेंगे? आप हमें ये कहेंगे कि आप हमें एडवांस दीजिए, या आप कहेंगे कि नहीं, नाउ वी विल अरेंज फॉर परमिशन टू बाय, अब आप इसको खरीद लेंगे और रजिस्ट्री करेंगे, एक हाथ से आप पैसे देंगे, दूसरे हाथ से रजिस्ट्री करेंगे, क्या ये होगा? यही होगा। आपको जो भी लैंड खरीदेंगे, हमें एडवांस नहीं देके फंसना है, पता लगा हम आधे पैसे देके चले जाएं और फिर हम बाद में फंस जाएं। प्रोबेबली यही मोहित जी पूछ रहे हैं, क्यों मोहित? मेरा सिर्फ इतना ही कंसर्न है कि ठीक है हमारे को लैंड पसंद आ जाती है, हम लैंड परचेज भी कर लेते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है कि लैंड परचेज होगी सोसाइटी के नाम पे, सो फॉर दैट वी नीड अ परमिशन फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द आई मीन एमडीडीए या जो भी अथॉरिटी है, टू बाय लैंड इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी के नाम पे, क्योंकि ये नॉन उत्तराखंडी वाली सोसाइटी है बेसिकली। सेकंड पार्ट वुड बी लैंड परचेज करना, उसके बाद परमिशंस आना, so that is another 3 months down the line। तो मैं वही सोच रहा हूँ, या इतनी वही बात है कि जब तक हम लैंड लेते हैं तो हमारा 3.5 करोड़ के आसपास स्टेक पे आता है, ठीक है। लैंड लेने से पहले एक तो पहली बात तो ये है कि क्या हमारे को परमिशन मिलेगी कि अरुणोदय कैन बाय दैट लैंड। तो आप जब आप हमें लैंड दिखा रहे हैं और हमें म्युनिसिपल लिमिट के बाहर दिखा रहे हैं, हमें कोई एक्स लैंड पसंद आती है तो आप उसकी परमिशन आप लेके आएंगे, फिर आप एमडीडीए से अप्रूवल या आरटीआई जो भी है आप लेके हमें देंगे और फिर हम आपको पैसे देंगे। विल दैट बी ओके? बिल्कुल ऐसे ही होगा। ऐसा ही होगा? ऐसे ही होगा। तब तक आपके पास हमारे 50,000 रुपीज रहेंगे, और अगर ये 3 महीने में प्रोसेस नहीं कंप्लीट हुआ तो आप वो 50,000 रुपीज हमें रिटर्न करेंगे। यही बात कह रहे हैं आप? बिल्कुल यही कह रहे हैं। पर इसमें एक चीज और जो मैं ऐड करना चाहूंगा, बिफोर वी गो इन फॉर परमिशंस, हम लैंड का जो रेट है वो नेगोशिएट करना चाहेंगे। नहीं, ये चीज आप मुझसे बात करेंगे, मैं आपको सारे मेरा कहने का पॉइंट ये है कि हम परमिशन लेके आ रहे हैं, कल को लैंड ओनर को पता है कि हमारे पास परमिशन है, तो वो रेट कभी कम ही नहीं करेगा। उसको तो ये पता चल जाएगा कि इनके पास परमिशन है, दे हैव टू बाय दिस लैंड, दे आर बाउंड टू बाय दिस लैंड, तो वो आपको पता है फिर लैंड ओनर कभी भी रेट कम नहीं करेगा। या तो पहले हम परमिशन लेने से पहले कुछ उसके साथ रेट नेगोशिएट करके रेट फाइनल कर लें, क्योंकि बाद में फिर ही कैन मतलब वो है ना, लेफ्ट राइट कर सकता है हमारे साथ, वी हैव द परमिशन, पर वो मानने को नहीं आएगा। नहीं तो मेरा क्या उसकी कुछ गारंटी है, कुछ है? सॉरी, अगर आप पार्टी के साथ बैठ के नेगोशिएशन करते हैं और आप सारे काम कर लेते हैं पार्टी के साथ में, तो मेरा रोल क्या रहा इसमें? वो तो सारे डिस्कशन या सारा जो भी बात होनी है वो तो सब मेरे से बात होनी है। आपकी जो भी लैंड होगी, जो भी मेरी टीम काम करेगी उस पे। So that means कि आप फाइनली नेगोशिएशन जो है हमारे बिहाफ पे आप करेंगे।
डेफिनेटली हर चीज में करूंगा। आपकी लैंड के रेट भी जो होंगे वो भी, और वो रेट उस मार्केट का, आप उस मार्केट में अदर उस लैंड को छोड़ के बाकी को चेक कीजिएगा कि क्या वो लैंड जो आपको मिल रही है वो कॉस्टली मिल रही है या उस लोकेशन पे रेट है उससे सस्ती मिल रही है। तो कोई अपर लिमिट होगी हमारी लैंड की, विद इन दिस लिमिट आप हमें दिलवाएंगे लैंड? अपर लिमिट वो एक बार फिर से प्रोजेक्ट कर दीजिए। उसी के अंदर आप लैंड दिलवाएंगे? हमारा ये है कि हम जो लैंड का रेट हमने लिया है वो 1.25 लाख पर बीघा के हिसाब से लिया है, और 25 लाख का हमने एक्सपेंसेस उसमें जोड़ा है, जो रजिस्ट्री कॉस्ट है प्लस रेवेन्यू कॉस्ट है, जो भी जैसा रिसिप्ट कटती है और रजिस्ट्री, क्योंकि अलग अलग कई सारे लोगों के नाम होती है तो उतनी रेवेन्यू रिसीव करती है। तो आपने 1.2 लाख पर बीघा लिया है, 3.75, और आपने 2 लाख उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह के चार्जेस लिए हैं। हमने मतलब टोटल जोड़ दिया उसको। और अगर म्यूनिसिपल लिमिट के बाहर होगी तो सस्ती भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सस्ती भी मिल जाती है म्यूनिसिपल लिमिट के बाहर, जैसे हमें दिख रही है। लैंड सस्ती भी होती है, लेकिन वही मुद्दा है कि जो लैंड कन्वर्ट हो गई है उसके रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं, परमिशन में बहुत खर्च होता है। और जो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो नेगोशिएबल होगी अगर हम लोग स्पेसिफिकेशंस पे जाएं, क्योंकि अगर हमारे पास 9.2 हम रेज ही नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे करेंगे? तो अगर आपके लिए इतना मतलब पॉसिबल है टू कन्वर्ट द म्यूनिसिपल नॉन म्यूनिसिपल लैंड के लिए हमको परमिशन दिलवाना, और आपके लिए पॉसिबल है, तो क्यों नहीं हम ये जो 3 बीघास है उसमें टारगेट ही करते हैं कि हम म्यूनिसिपल एरिया के बाहर देखेंगे और आप हमें परमिशन दिलवाएंगे। आप मतलब मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अगर ये आसान है, तो अगर आपके लिए आसान है तो हम क्यों नहीं ऐसा? परमिशन की जो बात है हम उस पे भी जा सकते हैं। अगर आप हमारे साथ में ये टाइम बॉन्ड जो 3 महीने का है लैंड का, ये तो 3 महीने का रहेगा, हो सकता है हम 1 महीने में आपको लैंड कर दें, लेकिन जो परमिशन का टाइम है वो मेरे हाथ में नहीं है। परमिशन की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मैं दिलवा दूंगा आपको, लेकिन परमिशन का टाइम गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर मैं अच्छे से फॉलो करके उसको करता हूँ तो वो परमिशन को लेने में मुझे कम से कम 1 साल मान के चलिए मिनिमम साइड है। Can I come in, Rachana, please? Please, Sandeep. फैजल जी, गुड इवनिंग, दिस इज संदीप सेठ। ये मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा था आपसे जी। Our society has been formed after 6 September 2006, जो कट ऑफ डेट है उत्तराखंड की, ठीक है जी, अभी 2 साल पहले ही बनी है। तो वी आर नॉट एलिजिबल टू बाय एग्रीकल्चरल लैंड, इट इज आफ्टर द कट ऑफ डेट। मैं यही रहता हूँ, देहरादून, लोकल उत्तराखंडी हूँ। आप कह रहे हो कि परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी एग्रीकल्चरल लैंड की? नहीं, मैंने ये नहीं कहा परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, यही आप ये कंफ्यूजन मत कीजिए। मैंने कहा मैं परमिशन दिला दूंगा, लेकिन परमिशन का फॉर्मेट मैं सोसाइटी के नाम अगर परमिशन नहीं होगी तो जो एग्जिस्टिंग ओनर है मैं उसके नाम परमिशन कराऊंगा, तो सोसाइटी के नाम रजिस्ट्री करा दूंगा। सॉरी, कम अगेन। जो एग्जिस्टिंग ओनर होगा लैंड का, मैं उसके नाम से सेल की परमिशन करा दूंगा, लैंड यूज कन्वर्जन की परमिशन करा दूंगा, तब मैं सोसाइटी के नाम करा लूंगा। लैंड यूज कन्वर्शन की परमिशन सेलर लेगा, शासन से मिलेगी। तो वो क्या परमिशन लेगा? फ्रॉम एग्रीकल्चरल ही विल पुट इट एज व्हाट? मतलब रेजिडेंशियल की परमिशन लेगा, इंस्टीट्यूशनल लेगा, क्या परमिशन लेगा वो? देखिए, अगर मैं R3 में परमिशन लेता हूँ तो मैं उसमें दोनों चीजें कर सकता हूँ, रेजिडेंशियल भी कर सकता हूँ और इंस्टीट्यूशनल भी कर सकता हूँ, हॉस्टल भी। और आपके हिसाब से जब सेलर को R3 परमिशन मिल जाएगी फॉर एग्रीकल्चरल लैंड, द सोसाइटी विल बी एलिजिबल टू बाय? डेफिनेटली। और R3 परमिशन आप लाके दोगे फॉर दी सेलर? डेफिनेटली सेलर लेगा ना परमिशन R3 कन्वर्ट करने की? सेलर तो सेलर के नाम से ही परमिशन करानी पड़ेगी।
और उसकी कन्वर्जन कॉस्ट कौन बेयर करेगा? Is that added in your 1.25? देखिए, हम जो आपसे लैंड की कॉस्ट और बाकी चीजों की बात करेंगे, जब हम एग्रीकल्चर लैंड पे जाते हैं तो सारी टोटल कॉस्ट जोड़ के ही बात करेंगे। आपने अभी तो दोनों दिखाई हैं, वो दोनों ही एग्रीकल्चरल है ना जी? नहीं, मैंने एग्रीकल्चर की बात ही नहीं करी आपसे अभी तक। पूरे जो आपने प्रपोज साइट्स दिखाई हैं, both are agricultural. नहीं, Gurukul is also agricultural and the other one is agricultural. सर, आप मेरी पॉइंट को क्लियर कट समझिए। जो मैं आपको लैंड दूंगा वो एग्रीकल्चर नहीं होगी। मैंने लोकेशन जो दिखाई है उसमें एग्रीकल्चर लैंड बहुत है, लेकिन उसमें R3 लैंड भी है। तो जब R3 लैंड है तो परमिशन की तो कहानी खत्म हो जाती है ना। Why are we discussing it for so long? अगर आप हमें R3 लैंड दिला रहे हो, मैटर इज ओवर, सोसाइटी कैन गो एंड बाय इट। एमडीडीए में अगर एमडीडीए में लैंड है और सोसाइटी के नाम मुझे देनी है तो भी मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। म्युनिसिपल लिमिट के बाहर है। R3 आउटसाइड म्युनिसिपल लिमिट, ओके। म्युनिसिपल लिमिट के बाहर अगर लैंड है और R3 है तो भी मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। उसका रास्ता मैं कैसे निकालूंगा वो कॉल मैं आपको, जब डील हमारी स्टार्ट हो जाएगी तो मैं आपको रास्ता दे दूंगा। To buy R3 land, primarily agricultural, outside municipal limits, उसका आप हमें रास्ता बताएंगे जो सोसाइटी खरीद ले। जी ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू। कुछ और क्वेश्चन? अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैं अपनी तरफ से पूछ रही हूँ कि मान लीजिए अगर हम एग्रीकल्चरल लैंड लें और अगर हम म्युनिसिपल लिमिट के बाहर लें तो हमें 50 लाख रुपए बीघा भी मिलती है। मिल जाएगी मैडम। ठीक है, तो हम अगर इतना ही आसान है लेना या इतना आपके लिए संभव है करवाना, तो आप हमें महंगी लैंड क्यों दिलवा रहे हैं? आप हमें सस्ती लैंड दिलवा दीजिए। ये मैं कहना चाहती हूँ, ताकि हम 8 करोड़ में बना ले। मेरी तो सुई वही अटकी हुई है। आप ये मान के चलिए कि अगर 50 लाख रुपए बीघा लैंड आप लेते हैं जी, परमिशन करने में, बाकी चीज उसका लैंड यूज कन्वर्जन करने में जो भी रेट वहां पर रहता है, जो वाइट का गवर्नमेंट का रेट है, उससे 1.5 गुना लगभग पैसा जमा करना पड़ेगा। नंबर 2, मैम 1 मिनट लूंगा मैं, मेरा घर फोन आ रहा है। उदय भाई आप 2 बात करो। उसमें मैम होगा क्या कि आपकी एग्रीकल्चर लैंड की कॉस्ट प्लस कन्वर्जन की कॉस्ट प्लस परमिशन में जो पैसे जाएंगे वो आप लोग बियर कर रहे होंगे, और प्लस रफली मिनिमम 1 ईयर का टाइम लगेगा आपको। अच्छा, सो इन दिस केस हम जो है बेस्ट पॉसिबल लैंड हमें 3 महीने में हमारा सारा कुछ करके अगर हम ये रेट लेंगे तो आप उसको कर देंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपने जो ये कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट निकाली है, इसमें अगर मान लीजिए हम कुछ चीजें कहें कि हमें कुछ चीजें नहीं चाहिए, तो आप उसके रेट सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम कह रहे हैं होगा मैम। अभी ये जो है ये बेसिक मतलब बहुत बॉलपार्क फिगर वो है, कॉस्ट है। इसमें जब मैं डिटेल स्पेसिफिकेशन से बात करूंगा तब उसमें हम लोग बहुत सारी कॉस्ट ये हैं जो है वो एडजस्ट हो रही होंगी, मोस्ट प्रॉब्ली डाउन साइड में जा रही होंगी। अभी है क्या कि जब आपने क्लास ए क्लास कंस्ट्रक्शन कहा है तो ए क्लास कंस्ट्रक्शन के अंदर उसके कोई स्पेसिफिकेशन सेट नहीं है आपके और मेरे बीच में। तो मुझे नहीं मालूम है कि आप मेरे से कल कहने लग जाए कि नहीं उदय मैं तो 150 रुपए स्क्वायर फुट का ग्रेनाइट लगाना चाहेंगे। वो कॉस्ट जो है, मैं भी उन कॉस्ट को, मेरे को नहीं पता है कि वो कॉस्ट कहाँ जाने वाली है। तो डिजाइन इज आल्सो नॉट फाइनलाइज्ड। हां, डिजाइन भी फाइनलाइज नहीं है। मुझे ये नहीं मालूम है कि मेरे स्पैन्स क्या आ रहे हैं, मेरे बिल्डिंग की ओवरऑल कॉस्टिंग क्या आने वाली है, स्ट्रक्चर की ओवरऑल कॉस्टिंग क्या आने वाली है। बहुत सारी चीजें हमें जिस वक्त हम लोग डिजाइन कर लेंगे उसके बाद ये बहुत सारी चीजें आपको बहुत स्पेसिफिकेशंस क्लियर हो जाएंगी, देन ओनली वी कैन एक्चुअली कम टू द एक्चुअल थिंग कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं। ओके, ये जो R3 आप बोल रहे हैं इन एग्रीकल्चरल सेम थिंग एज आबादी,
जिसको हम आबादी लैंड कहते हैं। सर दोबारा से रिपीट कीजिए अपना क्वेश्चन, क्या पूछा आपने? ये जैसे एग्रीकल्चरल लैंड में हम एक वो परमिशन ले लेते हैं पटवारी से, आबादी, जो R3 आप बोल रहे हैं, इज इट दी सेम थिंग एज आबादी? सर पटवारी को राइट ही नहीं है परमिशन देने का। अब तो गवर्नमेंट का पटवारी SDM आई डोंट नो कहाँ से साइन होता है, एक आबादी की वो मिल जाती है। तो आबादी एंड R3, आप आबादी तो समझ रहे होंगे ना, व्हाट इज आबादी? आबादी इज बेसिकली 143 and R3 is residential land use according to the development authority. तो कैन यू रिपीट इट, योर वॉइस इज नॉट क्लियर प्लीज। रिकॉर्ड्स के लिए होती है एंड R3 इज फॉर डेवलपमेंट अथॉरिटी। I couldn't get you, can you repeat it please? सर R3 मतलब है अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे MDDA जो एक्सेप्ट करता है वो R3 लैंड को एक्सेप्ट करता है, और MDDA आबादी भी एक्सेप्ट करता है। MDDA आबादी जो 143 है, जैसे कुछ एरिया आ गया है ना, अभी हमारा म्युनिसिपल लिमिट में आ गया एरिया, जो गांव इन्होंने शामिल किए हैं म्युनिसिपल लिमिट में। लेकिन नहीं साहब, मैं एग्रीकल्चरल लैंड की बात कर रहा हूँ। आबादी सर अलग अलग को MDDA अप्रूव करता है, फॉर्मूले कैलकुलेट होते हैं। अभी अगर मैं थोड़ा सा हट के जाऊं, हरिद्वार में 143 लैंड है तो उस पे हरिद्वार विकास प्राधिकरण नक्शा पास कर देगा, लेकिन 143 लैंड पे देहरादून में MDDA को दिक्कत है नक्शा पास करने, यहाँ उसको R3 लैंड चाहिए। एंड एग्रीकल्चर लैंड में R3 स्टेटस होता है अकॉर्डिंग व्हाट यू आर। देखिए आप जो है दो डिफरेंट चीजों को मिक्स कर रहे हैं। एक है विद इन म्युनिसिपल लिमिट जो है, और विदाउट आउटसाइड म्युनिसिपल लिमिट्स। और वी आर टॉकिंग आउटसाइड म्युनिसिपल लिमिट, आउटसाइड म्युनिसिपल लिमिट बट विद इन MDDA लिमिट्स। MDDA लिमिट्स जो हैं उसमें उनकी अपने लैंड यूज हैं हर चीज के, उन्होंने हर खसरा नंबर का उनका एक लैंड यूज है, स्पेसिफाइड है। मेरे समझ में तो पूरे देहरादून में MDDA लागू होता है, ऑल द वे फ्रॉम हियर टिल मसूरी। देयर इज नो एरिया इन द होल डिस्ट्रिक्ट ऑफ देहरादून व्हिच इज नॉट अंडर MDDA। Which area of देहरादून डिस्ट्रिक्ट इज नॉट अंडर MDDA? कोई एरिया नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो जब पूरा देहरादून MDDA में आ गया, माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। Is there R3 land available in agricultural land? एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर कोई R3 लैंड नहीं हो सकती, मतलब नहीं हो सकता ना। तो अगर R3 है तो म्युनिसिपल लिमिट में ही तो हो गया, अगर एग्रीकल्चरल में नहीं है, या फिर इंस्टीट्यूशनल हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। आउटसाइड देयर इज समथिंग लाइक व्हाट यू आर सेइंग, इट इज R3, इट इज नॉट एग्रीकल्चरल एंड इट इज नॉट म्युनिसिपल। हाँ, ऐसी बहुत सारी लैंड होंगी। रचना आप समझ रहे हैं? संदीप, या तो R3 ही होगा, हाँ, या रेजिडेंशियल ही होगा या एग्रीकल्चरल ही होगा, राइट। आप तो मना कर रहे हैं ना कि दोनों में नहीं है, ना तो एग्रीकल्चरल है ना वो म्युनिसिपल लिमिट में है। म्युनिसिपल लिमिट का मतलब है रेजिडेंशियल हो गया ना ऑटोमेटिकली। नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। म्युनिसिपल लिमिट में भी एग्रीकल्चरल हो सकता है, एग्रीकल्चर इवन फॉरेस्ट भी हो सकता है, फॉरेस्ट भी हो सकता है, हर तरह का लैंड हो सकता है म्युनिसिपल लिमिट में। और उसमें भी ये चीज लैंड यूज है, रेजिडेंशियल और एग्रीकल्चरल ये लैंड यूज को डिफाइन करता है, और म्युनिसिपल लिमिट पालिका की लिमिट को डिफाइन करता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो हमें चाहिए पालिका की परमिशन टू बाय द लैंड और R3 टू कंस्ट्रक्ट ऑन इट। करेक्ट, ठीक है। और अगर हम म्युनिसिपल लिमिट के बाहर हैं तो हम खरीद नहीं सकते। अगर रेजिडेंशियल, MDDA ने बोल दिया कि भाई ये रेजिडेंशियल है, तो भी हम खरीद नहीं सकते, क्योंकि हम सोसाइटी हैं और 2000 हम रूल्स में नहीं आते हैं। और अगर वो म्युनिसिपल लिमिट के अंदर एग्रीकल्चरल है तो हम खरीद सकते हैं, लेकिन हम उसमें बना नहीं सकते क्योंकि वो एग्रीकल्चरल है। सो उसके लिए कन्वर्जन करना पड़ेगा। उसके लिए म्युनिसिपल लिमिट के अंदर कन्वर्जन कराना आसान होता है। क्यों, मैं सही कह रही हूँ? जी सही कह रहे हैं मैडम।
म्यूनिसिपल लिमिट में अगर एग्रीकल्चरल लैंड है, क्योंकि वो म्यूनिसिपल लिमिट में आ गई है तो उसका कन्वर्जन आसानी से हो जाता है, बट फिर भी उसकी डेवलपमेंट चार्जेस देने पड़ते हैं। मतलब जितना मुझे मैंने समझाया, जितना मैंने समझाया। हेलो, हाँ प्लीज 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 संदीप सर, एक बात बताओ, दिस इज नथिंग टू डू विद द डिस्कशन। हम एग्रीकल्चरल लैंड लेते हैं, उसमें अपनी बिल्डिंग बना लेते हैं और कंपाउंडिंग कराते हैं एमडीडीए से, ठीक है, वो सस्ता नहीं पड़ेगा? सर आप ना एग्रीकल्चर लैंड लेके, हो सकता है एमडीडीए भी आए ही ना आपके पास में, बहुत सारी ऐसी लोकेशन है, आप बना के रहना शुरू करें। नहीं, हम तो चाहते हैं कि आए, हम बुलाएंगे, लेकिन we'll do a golden handshake. The building will be constructed as per the bylaws so that the compounding is zero. सर कंपाउंडिंग में जो टिपिकल टास्क है कंपाउंडिंग करना, पहला ये I know Udyan ji, I met him a couple of times, and we are now quite at the fag end of our presentations. This has been on my mind from day one, and this is what I have done. I live in Bishgaon. उद्यम जी को पास ऑन कर रहा हूँ, जरा वो समझाएंगे कि एमडीडीए में मतलब बेसिकली कंपाउंडिंग है क्या, ऐसी जगह पे क्या होगा उसका, आप प्लीज। एक्चुअल में एग्रीकल्चर लैंड के अंदर अगर मैं कुछ बना देता हूँ इलीगली विदाउट द परमिशन, तो वो आइदर डिमोलिश होगा या फिर वो सील होगा, उसका कंपाउंडिंग नहीं हो पाएगी। I don't agree, सर। मैंने अपना घर कराया है, मेरा घर एग्रीकल्चरल लैंड में है। I stay in बिस्टगांव। I have a MDDA approved नक्शा। I don't agree with what you are saying. देखिए एमडीडीए में बहुत बार ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम्स आती हैं, लेकिन नहीं, it was nothing to do with the one time settlement. I got an MDDA notice, JE आया था, my contractor did not grease his palms. Finally वो तंग होके उसने मेरे को रिटन नोटिस भेज दिया। पहले वहाँ होता था इनका पुराना ऑफिस डालन वाला में। मैंने काफी कोशिश करी कि फट जाए, उसने कहा जी फटेगा तो नहीं, आप कहो तो मैं दबा देता हूँ। मैं कहा दबाएगा फिर नया जेई आएगा, फिर नया जेई आएगा। आई सेड तू इसको सैंक्शन कर दे। आई पेड कंपाउंडिंग and I have an authorized MDDA नक्शा for my house. आज की डेट में ये पॉसिबल नहीं है, आज की डेट में ये पॉसिबल नहीं है। I don't know, you'll know that better. मतलब मैं I think it is still possible. तो इसलिए पता है पॉसिबल नहीं है। और आज हम लोग तो नॉन रिस्क वाला लेके चलेंगे। अच्छा उद्यन, एक बात बताइए, आपको याद होगा कि हम लोग जब फाजिल भाई जी के यहाँ आए थे, उसके पहले हम लोग किसी एक के घर गए थे, मैं उनका नाम भूल रही हूँ। संदीप क्या नाम था कि पास्ड अवे? मैं वो वहाँ पे थे, वो जो जिनके घर हम लोग गए थे, एंड ही प्रोवाइडेड सम इंफॉर्मेशन टू अस। मैं, उद्यन, आप, पढ़ना, हम सब लोग गए थे, एंड ही डाइड आफ्टर दैट। मिस्टर कुलदीप। Aparna didn't go. I had gone to drop Aparna. I dropped you and Mohit ji, and I came back there. Yes. So कुलदीप ने उद्यन, हाँ, कुलदीप जी ने एक आइडिया दिया था हम लोगों को कि उद्यन वहां पर मौजूद थे। उद्यन, जो कुलदीप ने एक आइडिया दिया था हम लोगों को कि हम लोग अगर सैनिटोरियम या कोई ऐसी चीज बनाएं तो वी कैन कंस्ट्रक्ट ऑन एग्रीकल्चरल लैंड आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम एमडीडीए बोर्ड। तो क्या ये संभव है? मैम, बोर्ड में आज की डेट में मतलब आप एवरेजली मान के चलिए, जो बहुत इजीली काम होने वाले हैं उसमें भी 30-40 की करीब नंबर 2 की हो जाती है। अच्छा, 30-40%? नहीं मैम, लैक्स। अच्छा, तो अगर मान लीजिए हमें बोर्ड से परमिशन भी कराना हुआ तो भी आसानी से नहीं होगा?
मैम आसानी से नहीं होता, बोर्ड से परमिशन में बहुत सेटिंग है और बड़ा मतलब और श्योरिटी नहीं होती है उसमें। अच्छा मेरा एक सवाल है मैम, जो हम काम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, देखिए दो तरीके होते हैं, एक तो सेटिंग वाला जुगाड़, हाँ, एक है कि जो आपकी कैलकुलेशन है, जो आपकी वर्किंग है, वो तो 100% रिफाइन है कि हमने विदाउट अथॉरिटी जाना ही नहीं है, हमने विदाउट अप्रूवल जाना ही नहीं है, हमने इलीगल कुछ करना ही नहीं है। तो ये डिस्कशन में ना ये हमारी जो हम नेगेटिव चले गए। मेरा नहीं नहीं, हमें तो बिना अप्रूवल कुछ करना नहीं है, हमें हमारे बच्चे हैं। हाँ नहीं है तो हम उस पार्ट को डिस्कशन ही क्यों कर रहे हैं? नहीं, पर ये तो पॉसिबल है, लीगली ये पॉसिबल है कि यदि हम अगर, क्योंकि ऐसा बायलॉ कहता है कि एग्रीकल्चरल लैंड में आप सैनिटोरियम बना सकते हैं, इसलिए मेरा ये सवाल आया। इसमें कोई गलत नहीं है जो मैं पूछ रही हूँ। कि हम एग्रीकल्चर लैंड पे बना लेते हैं और उसको बायलॉज में हम फिर बाद में जब उसको कंपाउंडिंग करा लेते हैं, तो कंपाउंडिंग में आपको, अगर आपने कभी कंपाउंडिंग का नक्शा देखा होगा तो उसमें एमडीडीए या कोई भी अथॉरिटी रेड मार्क कर देता है जो इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, और टू बी डिमोलिश करके उसका सेटलमेंट होता है और उसमें कैश में ब्राइब लेता है वो खूब अच्छे सारी। तो आप लोगों का बेसिकली जो कॉज है, जो जिस वजह से आप ये कर रहे हैं, उसमें ये इन चीजों की जगह मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए थे कि हम उस तरफ, अगर ये सारी सोचने की बात है तो आपका प्रोजेक्ट 8 करोड़ की कॉस्ट कहाँ लेके जाएगा? वो तो कम में ही बन जाएगा इन सारी चीजों को ऐड करते हुए। इसकी प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग और जो जिस तरीके से हम जिस ग्राउंड पे बात कर रहे हैं, वो ग्राउंड ही हमारा 100% फेयर है। हम इसमें 0% भी मैनिपुलेशन कर ही नहीं सकते अगर आपका पार्ट में देखें। सर सॉरी टू इंटरप्ट, मेरा नक्शा आज मेरे घर का एमडीडीए अप्रूव्ड है, उसमें क्या रिस्क है? सर उसमें मैं आपको बताता हूँ, आपका जो यादव चक्राता रोड पे बीपीएल गैलरी थी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इट वाज एग्रीकल्चरल लैंड एंड आई पेड कंपाउंडिंग। Sandeep, he is giving an example. चक्राता रोड पे बीपीएल गैलरी थी, वो वाला कॉम्प्लेक्स। हाँ, उसने पूरी कंपाउंडिंग करा रखी थी उस कॉम्प्लेक्स की। ओके। और उसको जिस वक्त तोड़ा गया है उनको कोई कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया है। That was for road widening or something ना? जिसके लिए भी था, लेकिन वो जिस वक्त वो तोड़ा गया उस वक्त ये कहा गया कि कंपाउंडिंग जो है ये आपको टेम्परेरी रिलीफ है, दिस इज नॉट योर राइट। ये राइट एमडीडीए किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकता है आपका। देखो सर, उस पे पूरा उनका स्टैंप लगा हुआ है, एमडीडीए नक्शा अप्रूव्ड, पूरा वो लिखा हुआ है। There is nothing written on it that it is can be revoked. There is nothing like that it can be revoked. एक काम on the sanction map. आपने कभी उसके साथ में जो है कि आपको सैंक्शन लेटर भी मिला होगा, उसको पढ़ा है आपके पास? अगर वो हो तो होगा, जरूर फाइल में होगा जी। तो वो एक बार आप उसको पढ़ लीजिएगा। मैप पूरा जो वो ब्लू प्रिंट होता है, उस पे उनका अप्रूवल का स्टैंप है, लेटर होता है, एक लेटर और होता है कवरिंग लेटर, उसका टर्म्स एंड कंडीशन सारी लिखी होती है, क्या राइट आपको है। और अच्छा, हम लोग तो फेयर ही जाएंगे, कोई रिस्क नहीं लेंगे। हम लोग तो वी आर थिंकिंग अबाउट अ हाउस which is going to help our children after us. तो हम आफ्टर अस में कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि जो भी आप दें हमें पक्का काम करके दें। एक बात। दूसरी बात, जो मैं एग्रीकल्चरल वाली बात पूछ रही थी, वो भी मैं पक्के काम के रूप में पूछ रही थी, क्योंकि मेरे को लगता था एमडीडीए का रूल है ऐसा, पर अगर नहीं है तो, अगर उसमें डिफिकल्टी है तो हम लोग किसी और चीज को देख सकते हैं ना। बिल्कुल है, लेकिन उसमें फिर वही वाली बात है कि उसमें एक तो बोर्ड की परमिशन, और हाँ? बोर्ड की परमिशन बहुत श्योरिटी नहीं होती कि वो परमिशन मिल ही जाएगी। अच्छा ठीक है। तीसरी बात है कि हम लोग यदि क्या कहते हैं, हम लोग अगर परमिशन लेंगे एमडीडीए से तो किस कैटेगरी में लेंगे? उद्यान मल्टी यूनिट में लेंगे या हॉस्टल में लेंगे? मैं दोनों में ही ले सकते हैं। R3 के अंदर मैं दोनों में ले सकता हूँ, मैं हॉस्टल में भी जा सकता हूँ R3 के अंदर, और R3 के अंदर मैं मल्टीपल यूनिट्स में भी जा सकता हूँ।
हम लोगों को ऐसी चाहिए जिसमें हमें कभी कोई हमारे बच्चों के रहने पे ऑब्जेक्शन ना उठा सके। मैम वो यही है कि मतलब अगर हम मल्टीपल यूनिट में जाते हैं उसमें भी जा सकते हैं, और ग्रुप हाउसिंग में जा सकते हैं उसमें भी जा सकते हैं, कोई वो मतलब कहीं ग्रुप हाउसिंग में रेरा का चक्कर आता है तब मैम उसमें हम लोग ये कुछ कर सकते हैं कि भाई ग्रुप हाउसिंग में हमें जाने की जरूरत नहीं है, हम मल्टी यूनिट में जा सकते हैं, उसमें ज्यादा अच्छा है। So will any contact in TCPO can help us in any permissions or anything? TCPO मैम, Town and country planning office. अच्छा TCPO मैम, एक्चुअली टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है एमबीडीए को। वो कहीं फंस जाते हैं तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के पास जाते हैं, अदरवाइज एमबीडीए के विद इन उनका जो भी कुछ है वो राइट सब कुछ उनके अपने पास में है। तो जब हम अगर लैंड खरीदेंगे म्युनिसिपल लिमिट के बाहर और परमिशन प्रोसेस होगी तो उसमें उनका कोई रोल होगा? नहीं मैम, अगर रजिस्ट्री मेरे नाम पे है तो एमबीडीए का कोई रोल नहीं है। एमडीडीए नहीं, टीसीपीओ का? नहीं मैम, उसमें भी उनका कोई रोल नहीं है। अच्छा, तो हमारी परमिशन अगर हम म्युनिसिपल लिमिट के बाहर खरीद रहे हैं तो लैंड स्पेसिफिक होती है, मतलब हम खरीद नहीं रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं 1.25 में तो शायद आप हमें अंदर ही दिला दें, लेकिन उसमें मैम म्युनिसिपल लिमिट में नहीं होगी, जो भी है हमें तो ये मालूम है कि आप हमें पूरी परमिशन करा के देंगे। हाँ मैम, मतलब एमडीडीए से लैंड अप्रूवल और ये जो है आपकी रजिस्ट्री उसके नाम पे, जो जमीन है ये आपके सोसाइटी के नाम पे, ये आप करवा के देंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। Any other question, sir? Hello. So Fadil bhai, thank you. At times मैं टीचर हूँ ना, तो मुझे लगता है कि कहीं फाजिल भाई को ये लग रहा होगा लोग क्लास ले रहे हैं हमारे। लेकिन हम लोग के सवाल होते हैं और बड़े कहना चाहिए कि because we want to make foolproof not only important but also a very foolproof system of living for our children. But ये रचना खरे नहीं, अजय खरे। सॉरी, ये मैं बोल रहा हूँ। मेरा अच्छा, मैं अपनी सूरत दिखा देता हूँ सर, एक मिनट। हाँ, हेलो, राइट। सो मैं ये कहना चाहता हूँ, इफ वी सम अप, you are looking for 90 days and 50,000 rupees from us, so that in 90 days you would give us peace of mind that ये आ गया लैंड। अब उदयन भाई और उनकी कंपनी, मतलब अक्षय भाई और सब लोग मिलकर के नक्शा बनाएंगे। आप 90 दिन और 50,000 रुपए देने को आप तैयार हो तो कार्यक्रम आगे बढ़े। सर पहले लैंड का कार्यक्रम आगे, सर नक्शे वाला पार्ट सेकंड है, पहले लैंड का पार्ट है। लैंड के लिए एक एग्रीमेंट होगा, कंस्ट्रक्शन के लिए दूसरा एग्रीमेंट होगा। उसकी स्पेसिफिकेशन कंस्ट्रक्शन की अलग होगी, पेमेंट स्ट्रक्चर अलग होगा। लैंड का तो वन टाइम पेमेंट है। लैंड सारे डॉक्यूमेंट क्लियर होने के बाद में अब आपके साथ में जो लैंड की डील है वो डॉक्यूमेंट वैसा नहीं कि अभी हमने 25% दे दिया, आप 3 महीने का टाइम फिर हमने वो ठीक है, वो तो सेकंड पार्ट है। लैंड फाइनल, उसके बाद तुरंत एक रजिस्ट्री की डेट रखी जाएगी, 10 दिन 15 दिन का जो भी टाइम होगा, आप लोग अपना जो फंड मैनेजमेंट है उसे करेंगे या जो भी टाइम आप देंगे हमें, और रजिस्ट्री हो जाएगी। अच्छा, तो अब ये बताओ कि अगर मान लीजिए देयर आर सम ऑफ अस हु आर विलिंग टू सी द प्लेस व्हिच यू आर प्रपोजिंग, तो कब कर सकते हैं? पहले हमारा और आपका ये एग्रीमेंट और ये प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद हम वो फाइंड आउट जो हमने किया हुआ है उनकी एक लिस्ट बना के प्रॉपर आपको इन्फॉर्म करेंगे, आपको बता देंगे कि आप और हमारा जो भी म्यूचुअल डिस्कशन होगा कि इस दिन हम रखते हैं, तो उस दिन नंबर ऑफ लैंड हम आपको दिखाएंगे शॉर्ट आउट करके। और ऐसा नहीं कि हम आपको 10 लैंड दिखाएंगे, आई एम श्योर कि हम 1 या 2 लैंड या 3 लैंड दिखाएंगे। ऑफ कोर्स यू विल डू द होमवर्क एंड देन ओनली। ऐसा नहीं कि अभी आपने देहरादून में बहुत सारी लैंड देखी हुई है, बहुत सारी देखी हुई है, तो मुझे पता है, इसका जानकारी है। तो अभी हमें यही करना है कि आपको जो लैंड फिजिबल है, जो हमारे बजट में है, जो लीगली ओके है, वही दिखाएंगे। ओके, लीगली में तो बहुत सारी इश्यूज होते हैं। टाइटल एक चीज है, लेकिन खाला और चाचा और पता नहीं क्या क्या होता है।
और हम दिन रात का जैसे उद्यान का काम नक्शे बनाने का है, वो खाला चाचा का काम मेरा देखने का है। ठीक है, ठीक है। तो आप वो सब चेक करेंगे, है ना, बिफोर यू करके आपको प्रॉपर तरीके से बना के देंगे। So nice of you. Thank you so much indeed. Any other question or should we finish the meeting? No, I'm good. I'm good. Oh, Namrata. Okay, fine. Mohit? I'm good. Okay, ji. Thank you so much. Yeah, thank you, ji. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. And bye-bye, everyone. Bye. Bye. Thank you. Good night.